Back and come back with the part of the transport 2. Now let's get started without delay the time. So today's topic, how the gases exchange between tissue and lungs by the antiporter. We completed last class with symporter and uniporter. Now we talk about the antiporter. Now here antiporter, the exchange between chloride and bicarbonate. Okay, so it's an anion exchange in lungs. I'm already mentioned how they work. Okay, so lungs to tissue transfer oxygen and gain CO2. Come and transfer in the tissue. In tissue, water react with still histidine, and now histidine become protonated. Okay, because histidine protonated only capable to bind oxygen. Now SO3 transfer from tissue to lung, and chloride and come from lung to tissue by anion transporter. So there's the two anion transporter, one in lung cells and one in tissue. So in tissue, chloride ion is out. In tissue, chloride ion is in, and so bicarbonate is outside. In lung, bicarbonate is in and chloride ion is outside. So here in lung, when H ion SO3 come and chloride is released in lung. Okay, histidine deprotonated by oxygen. So how that work? CO in tissue run TCA in tissue. So already they have a high carbon dioxide plus water. It convert in the presence of carbonic anhydrate bicarbonate bicarbonate. Here HN plus it divide into HN and SCO3. SCO3 go and chloride and come. Now it HNCl react with main hydrochloric acid, and on another hand in lung the SCO3 come and chloride and is out, and in the presence of HN it break down into the carbon dioxide and water in the presence of कार्बोनिक anhydrate. ठीक है, और CO2 is exhale out and water is used in the another metabolic reactions. So it's a type how the chloride and bicarbonate in an exchange. Okay, अब हम बात करेंगे पी टाइप के बारे में. Calcium ion transport, again the concentration in the India ER, we are very well known the ER, the calcium ion concentration is 10 to the power -2, and the cytosol of the calcium ion concentration power is 10 to the power -7, and it is transform ER to cytosol very few minutes. To the cytosol power convert 10 to the power -7 to 10 to the power 6, and if the it is a normal, okay, it is delta G negative. But when the calcium ion transfer from cytosol to ER, its delta G is positive, so it's done by P type. Here 2 calcium, for the transfer of the 2 calcium ion use 1 ATP molecule, and the P type have a 4 part A, M, P, N. It's A for actual, M for membrane, P for phosphodomain, and N for ADP binding domain. Here actual domain define the way of the 2 calcium ion in membrane. It is the P type if the transfer the calcium ion from cytosol to ER, it means against the concentration use sucker pump. Okay, ATP calcium ion bind. Now how they work? ATP and calcium ion bicalcium ion, it means 2 mole of the calcium bind M domain, ATP bind N domain, then phosphorylate aspartate. The P domain contain their aspartate residue and it is phosphorylated. Now calcium in active site binding in M domain, ADP bind on N domain requires the magnesium ion, and the phosphate ion on aspartate residue on the P domain. The number of the aspartate residue is 351 by the inbuilt phosphorylation activity. Okay, how is they work? Now the flow is A for the actual binding site, M bind to calcium ion, and here is the phosphorylated at M domain, ATP bind on the N domain, and the P domain contain phosphodomain. So
the aspartate is located on the P domain, and the number of aspartate is the 350. ADP bind on the M domain, 2 calcium ion bind on the M domain. So how they work? This is the complete AMPN. P bind to the ADP plus inorganic phosphate, N bind to the aspartate to 315 calcium ion, and ATP bind N डोमेन मूव ऑन हो जाएगा. कैल्शियम आयन 2 M डोमेन के साथ ऑलरेडी बाइंड है. यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ATP को बाइंड करना होता है ना एन डोमेन को, इसीलिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो होता है ना वो अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि ADP नेगेटिव चार्ज कंटेन रखता है अपने पास और मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का ही अट्रैक्शन होकर वो उसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, नाउ मैग्नीशियम आयन हेल्प विद मैग्नीशियम आयन इन पी डोमेन हेल्प टू बाइंड द पी डोमेन इन ADP form. Okay, now calcium ion release into the ER, phosphorylate lead to conformation change, ADP plus inorganic phosphate. Now it convert into ADP. A domain move and release ATP domain, and magnesium ion is also domain. P domain become dephosphorylated. If it dephosphorylated, the reaction is stuck. It means calcium ion already moved down to the ER. M ion is empty. फॉस्फोडोमेन डिफॉस्फोराइलेटेड, तो जो डिफॉस्फोराइलेटेड के दौरान फॉस्फेट ग्रुप रिमेन होगा वही ADP जो एन डोमेन में बाइंड था उससे रिएक्ट करके ATP बन जाएगा और वो ATP रिलीज हो जाएगा. और इन सब प्रोसेस के बाद AN जो ए डोमेन होगा वो मूव ऑन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट का यूज़ हो रहा है कन्फर्मेशन चेंज करने के लिए. तो फॉस्फेट के इन्विटर कौन होते हैं? वैंडेट और आर्सेनेट. इफ अगर हमने यहाँ पे वैंडेट और आर्सेनेट डाल दिया तो यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन जो है एन डोमेन का वो इनहिबिट हो जाएगा. पी डोमेन का, पी डोमेन पे जो फॉस्फेट एस्पार्टेट रेसिड्यू है 351 वो फॉस्फेट हो रहा है वो इनहिबिट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर ये एस्पार्टेट रेसिड्यू इनहिबिट नहीं, मतलब फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा तो आगे की रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो पाएगी, यानी वो रिएक्शन अपने जगह पे ही स्टक ऑफ हो जाएगी. ठीक है, अब बात करते हैं ना. अब थैप्सिगर्नन और बारबिक्यूरेट ये IP3 सेंसिटिव कैल्शियम आयन को बढ़ा देते हैं, यानी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कंटिन्यू साइटोसोल में हाई बनी रहेगी, तो सेल साइकिल हाई होती रहेगी. और जब किसी भी चीज़ की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं. ठीक है, यानी थैप्सिगर्जन एंड बारबिक्यू मोस्टली जब जो कोई भी फूड को कंटिन्यू कुक करते हैं तो उसमें उसको बारबिक्यू बोलते हैं. ओके, अब हम एक कंपोनेंट मान लेते हैं, जैसे T1 है, एक सब्सटेंस मान लीजिए उसको कैरी करके ले जाने वाला है. T1S आउट, यहाँ पे ATP ADP में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे सब्सटेंस फॉस्फोराइलेट हुआ क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया ना. T1S आउट कॉम्प्लेक्स T1S इन के साथ, ये अब तक आउट के साथ इन आ गया. नाउ T2 जो था यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म था वो T सिन से अलग हुआ और जो प्रोडक्ट उसको डिलीवर करना था डिलीवर करके वो अगेन T1 में कन्वर्ट हो गया. T1 की एस इन के साथ जो बाइंडिंग थी वो कम थी, इसलिए वो वापस उसके पास कोई लोड नहीं था, वो रिलीज़ होके पेरीफेरी पे आ गया. ओके, और T2 अपना सेल के अंदर रह गया. वैंडेट एंड आर्सेनेट पी टाइप पंप को इनहिबिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे वैंडेट और आर्सेनेट फॉस्फेट को इनहिबिट कर रहे हैं. और पी टाइप में जो उनकी पी डोमेन होता है ना वो फॉस्फोराइलेट करता है अपने पास मौजूद एस्पार्टेट 351 रेसिड्यू को, इसीलिए वैंडेट और आर्सेनेट जो है वो पी टाइप एंड पंप को इनहिबिट कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे डिजिटॉक्सिन फॉक्सो वाबिन है वो फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप में. ओके, अब बात करते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह काम करता है. जैसे 3 सोडियम है, ठीक है, प्लस T1 से उन्होंने रिएक्ट किया, इनसाइड है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होती है, इनसाइड कम होती है. फिर 3 सोडियम आयन और T1 एक कॉम्प्लेक्स बन गए. यहाँ पे ATP से ADP प्लस यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो वो रिएक्ट हुआ, उसने T1 को फॉस्फोराइलेट कर दिया आउटर साइड में. 3Na रिलीज आउटसाइड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की रिलीज कर रहे हैं आउटसाइड, यानी इनसाइड जो आउटसाइड जा रहे हैं, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वो ATP को एज एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे T1 का जो फॉस्फोराइलेटेड रेसिड्यू था उस मतलब T1 पे भी एक एन
फॉर्म होगी, उस पर एस्पार्टेट फॉस्फोराइलेट होगी, उसकी एफिनिटी जो है वो 3 सोडियम आयन के साथ बाहर जाते ही लो हो जाएगी। जैसे ही उसकी एफिनिटी लो होगी तो वहाँ पे वो बाहर सोडियम आयन को रिलीज़ कर देगा, पर वहाँ पे वो खाली नहीं रहेगा। जैसे T1 की जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म उसकी एफिनिटी सोडियम के साथ लो, पर उसकी एफिनिटी बाहर जो पोटेशियम साइड है ना उसकी एफिनिटी उससे उसका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 3 सोडियम आयन को बाहर छोड़ा, बाहर जो 2 पोटेशियम आयन थे उनके साथ वो रिएक्ट होके उनको आउटसाइड से इनसाइड ले आया। और यहाँ पे उसने इनसाइड जैसे वो आया, इनसाइड के में जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, वहाँ क्या हुआ, उसकी एफिनिटी पोटेशियम के साथ कम हो गई और उसने उस पोटेशियम को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, यानी उसने क्या करा, बाहर उसकी एफिनिटी किसके साथ कम थी, सोडियम आयन के साथ, तो जो सोडियम इनसे आउट ले गया था उसने उसको रिलीज़ कर दिया। और अंदर आते ही बाहर उसकी फिर वो जो फॉर्म मॉडरेट हुई उसमें उसकी एफिनिटी बाहर जो जितनी थोड़ा भी कम कंसनट्रेशन पोटेशियम था उससे रिएक्ट करके उसने वो अंदर ले आया। दोनों ही यहाँ पे अगेंस्ट द कंसनट्रेशन हो रही है, क्योंकि पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होती है, सोडियम आयन की कंसनट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे इस मूवमेंट के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको इन्होंने ATP के फॉर्म में लिया है। ठीक है, now sodium and potassium are basically responsible for the muscle contraction and nerve conduction. muscle contraction सोडियम आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा, पोटेशियम भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा। इट मीन सोडियम कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर से बाहर जाएगा, और पोटेशियम कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप रन फॉर द मसल कंट्रेक्शन है, इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम पंप स्लो और रिड्यूस रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अबाउट 40 to 60%। ऑक्सीजन ऑक्सीडेज सोडियम पोटेशियम पंप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ATP सिंथेसिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रिडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देंगे तो कैल्शियम पंप भी क्लोज हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम पंप ऑल्सो अफेक्ट कैल्शियम आयन ATPase, हैंस इनहिबिट सोडियम पोटेशियम पंप। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन जो है वो जैसी थी वैसी बनी रहेगी। सोडियम आयन एंटीपोड इन द साइटोसोल। ठीक है, अगर 3 सोडियम आयन आउट प्लस कैल्शियम आयन इन, 3 सोडियम आयन इन होंगे, कैल्शियम आयन आउट हो जाएंगे, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन होंगे। मतलब ये सेम पोर्टर को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों अगेंस्ट मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक सोडियम आयन साइटोसोल से ER जा रहा है तो कार्डियक मसल्स, सोडियम आयन इन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, इन से आउट जाएगा। कैल्शियम आयन की मूवमेंट होगी ER से साइटोसोल 10⁻² से 10⁻7 अलॉन्ग द कंसंट्रेशन, और आउटर टू इन कैल्शियम आयन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन बाय सॉक चैनल। यानी एंटीपोटर में क्या होगा, कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है, सोडियम आयन बाहर जा रहा है। एंटीपोट हो रहा है क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है, ये लॉन्ग जा रहा है, कैल्शियम अलॉन्ग रिलीज एनर्जी टू हेल्प सोडियम ट्रांसपोर्ट। इन मसल कंट्रक्शन की बात करें, 3 सोडियम आउट टू इन जा रहा है, यानी कि अलॉन्ग द कंसंट्रेशन जा रहा है। 1 सोडियम आयन को आउटसाइड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, 3 सोडियम आयन अलॉन्ग रिलीज एनर्जी टू हेल्प ट्रांसपोर्ट 1 कैल्शियम आयन इन द ER बाय हेल्प ऑफ द सरका पंप। ओके, सोडियम आयन हाई हो जाएगा तो हम यहाँ पे ओआपिन ऐड करेंगे, जिससे कि वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देगा। तो वो क्या होगा, जब पंप इनहिबिट हो जाएगा तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड हाई हो जाएगी, और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोसोल में हाई हो जाएगी, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड हाई लो हो जाएगी, और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड लो हो जाएगी। सो इससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ओआपिन डिजिटॉक्सिन क्या करेगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को साइटोसोलिकली हाई इस तरह कर रहा है क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर लेगा। तो इससे कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। द सोडियम पोटेशियम ATPase की बात करते हैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कार्डियक मसल और द अदर बॉडी सेल क्रिएट द सोडियम कंसंट्रेशन हाई एंड एक्सपोर्ट्स इनसाइड, एंड कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी साइटोसोल में। ये लिंक्ड होता है सोडियम और पोटेशियम आयन के बीच में, सोडियम एंड कैल्शियम के बीच। एंटीपोड एट मेंशन अर्ली इनहिबिटर ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप बाय द ATPase ड्रग ओआपिन एंड डिजिटॉक्सिन लोअर करते हैं वो साइटोसोलिक पोटेशियम कंसंट्रेशन को, और इंक्रीज करते हैं साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन को। हम टाइप ऑफ ATP पावर पंप की बात करते हैं। 4 टाइप ऑफ पावर पंप होते हैं, P क्लास, V क्लास, F क्लास, ABC सुपर फैमिली। नाउ वी टॉक अबाउट द P क्लास पंप। P क्लास पंप ट्रांसफर H आयन, सोडियम आयन, H आयन, पोटेशियम आयन, हेवी मेटल across the across the cell membrane against the concentrated gradient. There are 5 type of the P type class known as P1, P2, P3, P4, P5। अब हम बात करते हैं अगर P1 की है तो P1 किस चीज़ को मूव करेगा, यानी हैवी मेटल्स को ट्रांसफर करता है, जैसे कॉपर हो गया, एडमी सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, कोबाल्ट हो गया, पोटेशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी ATP को यूज़ करेगा। P2 की बात करते हैं तो ये प्रीडोमिनेंट होता है,
P1 प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, फंगाई में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। P2 की बात करते हैं तो ये यूकैरियोट्स में प्रीडोमिनेंट होता है और ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी क्लास पम्प फाउंड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन स्टमक, पोटेशियम एंड चैन पम्प, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय हायर यूकैरियोटिक सोडियम पोटेशियम पम्प, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, एचएन पम्प। P3 की बात करते हैं तो ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है प्रोकैरियोट्स, प्लांट एंड फंजाई में। P4 एक्ट एज अ फ्लिपेज, फ्लिपेज हमेशा क्या करता है, बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर लाता है। P5 जो होता है वी टाइप की तरह कार्य करता है। इन सभी का कंजर्व स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं वी टाइप के बारे में। वी टाइप प्रोटॉन पंप, वैक्यूल मेम्ब्रेन इन प्लांट, ईस्ट एंड फंजाई, एंडोसोमल मतलब ये वैक्यूल मेम्ब्रेन की तरह वैक्यूल मेम्ब्रेन बनाता है प्लांट, ईस्ट एंड फंजाई में। एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में पाया जाता है एनिमल सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड सब किडनी ट्यूब्यूल। एफ क्लास प्रोटॉन पंप की बात करते हैं तो बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, और वी क्लास पंप में कहीं भी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंडेट और आर्सेनेट के थ्रू ये इन्वेट नहीं हो पाएंगे। हम बात करते हैं एबीसी सुपर फैमिली बैक्टीरिया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीनो एसिड, शुगर, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग, कोलेस्ट्रॉल, अदर स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हम बात करते हैं वी क्लास प्रोटॉन पंप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ द लाइसोसोम। वी नो दैट लाइसोसोम इज द सोसाइटल बेड, इट कंटेन हाई एसिडिक एंजाइम दैट बाय, इसका एसिडिफिकेशन किसके थ्रू होता है, वी क्लास प्रोटॉन पंप के थ्रू ये लाइसोसोम और एंडोसोम को एसिडिफाई करने का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वैक्यूल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, फंजाई एंड ईस्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट एंड किडनी ट्यूब्यूल। बट वी टाइप डिफर फ्रॉम द पी टाइप। वी ऑल्सो मेंशन दैट कि वी टाइप आर नॉट phosphorylated, does not inhibit mandate and arsenic. We use only ATP hydrolysis as an energy source. Or here, if cytosolic pH 7 plasma membrane and pH 5, again the concentration HN ATPC, तो मतलब अगेन मूव होगा क्योंकि pH 5 से pH 7 to pH 5 आ रहा है ना, तो एचएन कंसनट्रेशन लो से हाई की तरफ जा रही है, तो कंसनट्रेशन एटीपी हाइड्रोलिसिस बस फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंडेट और आर्सेनेट के थ्रू इन्वेट नहीं हो पा रही। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी की। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कास्केट, दे आर द रिस्पॉन्स ऑफ लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल सच एज फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, बाइल सॉल्ट एंड क्लोराइड, एंड दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड, अगेन द कंसंट्रेटेड नॉर्मली आउट सेल इन द लिवर। CFTR तो मैं कल ही शुरू करूँ क्योंकि CFTR के बारे में मैं कायदे से बताना चाहूँगी पूरा ब्रीफ में। हाँ, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ द एबीसी। एबीसी 1 की बात करते हैं, अगर ये प्रोटीन है, ये टिश्यू किसके अंदर पाया जाएगा, ये एड्रिनल, किडनी, ब्रेन में पाया जाएगा और ये लाइपोफिलिक ड्रग को एक्सपोर्ट करेगा। एबीसी 11 की बात करूँ तो ये टिश्यू, ये लिवर टिश्यू में पाया जाएगा और ये बाइल साल्ट को एक्सपोर्ट करेगा। एबीसी 1 की बात करें तो यूबिक्विटिन की तरह कार्य करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो टेंजेंट डिजीज हो जाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोर्ट करता है, फॉस्फोलिपिड को अपटेक करता है और हाई डेंसिटी लिपिड को अपटेक करता है। अगर एबीसी 4 की बात करें तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस 2 की तरह काम करता है लीवर में, और ये एक्सपोर्ट करता है फॉस्फोकोलिन इनटू द बाइल। अब हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्ट की, ये एक्सोक्राइन टिश्यू है और ट्रांसफर करता है क्लोराइड। इसके बारे में हम डीप डिस्कशन कल करेंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। इसमें 4 मेम्ब्रेन होती हैं और हर एक के अंदर 6 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि ये 24 से मिलकर बना होता है ना। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं अपने लिए ही कह रही हूँ। तो कल फिर मिलते हैं ट्रांसपोर्ट पार्ट 3 में, और ये लास्ट पार्ट होगा, थोड़ा सा ही बच्चा है। सोच रही हूँ CFTR को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।